Now, dear students, we will go for some more substitution problems. Look at this. I equals to dx upon 1 plus x square into root tan inverse x. Correct? This is our integration. Now we have to integrate. So look at this. I told you that tan inverse x integration we will come to know in by parts. So here, if we substitute tan inverse x as a t, so the derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. So derivative of this is 1 plus x square and dt by dx. So dx came this side. So this much is balance. So now what left? dt upon this is root t. Now you can integrate this. This came t to the power minus 1 by 2. t to the power n के फॉर्म में आ गया. Now integration is minus 1 by 2 plus 1 minus 1 by 2 plus 1. So this is 1 by 2 and this is root t, and t you have taken tan inverse x plus c. Fine. So you have to check कि किसको पुट किया जाए so that उसका डेरिवेटिव वहाँ पे अवेलेबल हो, है ना. तो tan इनवर्स x को मैंने पुट किया t, रूट को नहीं, पूरे रूट को नहीं, केवल tan इनवर्स. रूट पुट करोगे तो डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो वहाँ पे डिमांड में भी नहीं है. सो इनसाइड tan इनवर्स x को मैंने t पुट किया, ठीक है, and then differentiation, so that this and this convert in terms of t dt. Now dt upon root t, और ये आ गया t to the power n फॉर्म में, h to the power n, we know that integration, ठीक है. आइए एक और सिचुएशन देखते हैं. We have, let's say, sine root x upon root x dx. It can be cos root x upon root x or tan root x upon root x dx. ठीक है, ये तीनों सब में कैसे क्या करना है. तो अगर मैं इस रूट एक्स को t पुट करूं, पुट रूट एक्स एज ए t, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स ऑल ऑफ यू नो 1 by 2 रूट एक्स and t का dt by dx, so dx this side and dt left here, dt by dx I grab this side. So यहाँ पे dx upon root x है, 2 I'll send that side, dx upon root x equals to 2 dt. ये हमारी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, I equals to sin t and dx by root x is 2 dt into 2 dt. So 2 will take outside, constant sin t dt, which is minus 2 cos t plus c. Sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, and therefore t you substitute again root x cos root x in place of t root x plus c. Fine. For the same sum this way also we have to do the same thing, root x as a t. For this also root x as a t. Correct. For all three this type, whenever you have this situation you can go with root x as a t. तभी देखिए ये फॉर्म में आएगा ना, sin t रूट t, 2 कांस्टेंट हो गया, sin t इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा cos t, ये आ जाएगा tan t. करेक्ट. ऐसे में सब्स्टिट्यूशन क्लियर है. रूट x को आपने t पुट किया, तभी तो ये sin t बनेगा ना, और sin t हमारे टेबल पे है. इंटीग्रेशन में sin t की वैल्यू पता है आपको, माइनस cos t. आइए देखते हैं सिचुएशन. लेट्स से आई हैव e टू द पावर x क्यू इंटू एक्स स्क्वायर dx. ठीक है, e टू द पावर x क्यू इंटू एक्स स्क्वायर dx. तो डियर अगर मुझे ये अगर t बन जाए e टू द पावर t, तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हमने e टू द पावर x लर्न रखा है. तो ये सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारा रेडी है. दैट मीन्स एक्स क्यू को वी विल पुट t. करेक्ट. Put x क्यू एज ए t. So differentiation क्या होगा डियर, 3x square dx equals to dt, dt by dx, dx I drag this side. यहाँ पे x square dx है, 3 I have to send that side. So x square dx equals to dt by 3. Now entire integration is transformed into, this is e to the power t into
dt by 3, 1 by 3 constant, e to the power t dt. ठीक है. Now you know the integration of e to the power t, which is e to the power t only. So 1 by 3 e to the power t is e to the power t plus c. So 1 by 3, what is the e to the power t? t हमने क्या ले रखा है? x cube plus c. This is the answer. Or you can write this way, e to the power x cube by 3 plus c. ठीक है. आपने x cube को सब्स्टिट्यूट किया, x cube as a t, डिफरेंशिएट x square dx which is dt by 3. पूरी इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट हो गई in terms of t, which came e to our t dt, and then integration you know, and finally you have to resubstitute the e to the power t. Correct? स्टेप बाय स्टेप समझिए क्या सब्स्टिट्यूट करना है. आफ्टर सब्स्टिट्यूशन व्हाट विल हैपन? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट steps that you have to take care in integration. What to substitute, after substitution what we will get, क्या वो हमारे टेबल पे आ रहा है? Yes, of course it is coming e to the power t, जो अपने टेबल में है, फॉर्मूला में है e to the power x. Clear? So now let's move some type. Let's say I have to integrate tan to the power 5x dx. ठीक है. tan square x का इंटीग्रेशन हमने डिस्कस कर लिया था. tan square x क्या था डियर? इसको हमने sec square x minus 1 बता दिया था. ठीक है ना. Because tan x इंटीग्रेशन you know log sec x. tan square को sec square x minus 1 कर दिया. Integration of formula, trigonometric formula, and then sec square x dx minus dx. You know sec square x integration is tan x and dx is x plus c. तो ये tan square x का integration ये. Fine. Now the question is tan to the power 5x. tan to the power 5x कैसे इंटीग्रेट होगी? तो इसको हमने कैसे करना है डियर? कि मैं इसको स्प्लिट करूँ इस तरह से. लेट्स से अगर मैंने इसको tan क्यूब x इंटू tan स्क्वायर एक्स बनाया. ठीक है. पहला स्टेप tan क्यूब एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स. वाई आई मेड इट दिस वे? सो दैट tan स्क्वायर को मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बना सकता हूँ. ठीक है. क्या बना सकता हूँ मैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. सो मैं अगर tan इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बनाऊंगा तो मेरा फिर से tan को पुट करने पे सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा. इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा. डेरिवेटिव आ जाएगा ना tan का सेक स्क्वायर. सो मैं इसको डियर tan टू दी पावर क्यूब एक्स और इसको लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स. ठीक है. tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. अब इनको इंटू कर लेते हैं. tan क्यू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये इंटू ये अलग इंटीग्रेशन बना लेते हैं tan क्यू एक्स का. ठीक है. क्लियर है? यहाँ तक दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट किया. दिस इंटू दिस and this into this separate. यहाँ पे अभी मैं tan x को पुट करूँ तो sec square x मिल रहा है. So put tan x t. So I got sec square x dx is dt. Correct? तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? t cube and this is dt. Fine? Minus. यहाँ पे आप देखो इस इंटीग्रेशन को tan x into tan square x minus 1 भी कर सकते हैं. ठीक है ना. इस इंटीग्रेशन को मैं tan x इंटू tan स्क्वायर को मैं फिर से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx कर दूंगा. tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स. ठीक है. कैन वी राइट tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स और फिर tan स्क्वायर एक्स के लिए मैंने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दिया. इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ डियर? t टू द पावर 4 by 4 माइनस. अब यहाँ पे फिर से मैं एक tan x और सेक स्क्वायर को एक साथ ले लूंगा. tan x सेक स्क्वायर एक्स dx और ये माइनस और ये माइनस प्लस अलग सा इंटीग्रेशन tan x dx. ठीक है. फिर से यार tan x पुट करेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है आपको. ये t4 by 4 क्या आ रहा है अपने को? यहाँ चेक कर ले. t4 by 4 ये हो गया tan x डाला आपने तो tan टू दी पावर 4x by 4 ये आ गया माइनस. यहाँ पे भी tan x को मैंने अगर t लिया
ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है अपने को डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स डी, टी पुट किया यहाँ तो ये क्या रह गया, टी डी टी, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, टी स्क्वायर बाई टू, ये टी डी टी आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी, सो टी स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे डियर प्लस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस सी, अब सब जगह tan डाल दीजिए, यहाँ तो डाला ही हुआ है tan टू दी पावर 4x बाई 4, ये हो गया tan स्क्वायर x बाई 2, और ये हो गया log sec x प्लस सी, ठीक है। सो ये देखो आपकी tan x को किस तरह से छोटे छोटे स्प्लिट किया हमने, tan qx इंटू tan स्क्वायर एक्स, फिर tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर tan qx इंटू सेक स्क्वायर एक्स एक जगह क्लब किया, फिर माइनस tan qx अलग क्लब किया, फिर tan qx सेक स्क्वायर एक्स में tan x से टी डाल दिया, सो दैट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बना रहा है अपने को, तो टी टू और 3 टी टी मिल गया, माइनस उस tan qx को मैंने tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स में चेंज किया, और tan स्क्वायर एक्स को वापस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दिया, और फिर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स सेपरेट इंटीग्रल, और माइनस माइनस प्लस tan x एक अलग इंटीग्रल आ गया, फिर वहाँ भी tan सेक स्क्वायर में tan x टी डालोगे आप तो टी डी टी, और टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, फाइन, एट द एंड tan x का इंटीग्रेशन ऑल ऑफ यू नो log सेक x, ठीक है। तो इस तरह से बड़े, ये भी फॉर्मूला ही सब्सटीट्यूशन से जा रहा है, tan x के फॉर्मूला से ही आप कर रहे हैं, कोई नई चीज़ इसके अंदर नहीं डाल रहे हैं आप, इसमें को इसको ही स्प्लिट इस तरह से करना है कि मेरे को उसका डेरिवेटिव दिखता रहे, यहाँ सेक स्क्वायर दिखा, यहाँ tan 2x को वापस मैंने tan स्क्वायर बना के सेक स्क्वायर एक्स बनाया है, कि सो दैट मैं कुछ ही tan x पुट करूंगा तो सेक स्क्वायर डी एक्स दिखना चाहिए, एंड में अपने को tan x मिल गया, बिकॉज tan qx का इंटीग्रेशन अपने को नहीं याद है, tan टू दी पावर 5x का इंटीग्रेशन याद नहीं है, वो अभी टेबल में लिखा भी नहीं है आपको, tan x का लिखा है, सेक स्क्वायर x का लिखा है, या tan x का लिखा है, tan x इज log sec x and sec square x is tan x, so this way we can expand and this way we can get the solution of such question, ठीक है डियर। आइए एक नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के सब्स्टिट्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम है। Suppose I have one more situation, sin qx into cos qx, ठीक है। चलिए मैं sin qx into पहले cos x dx की बात करता हूँ, फाइन। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, अगर मैं sin x t पुट करूँ तो cos x dx मिल जाएगा अपने को, ठीक है। If I put sin x as a t, so I will get, when you differentiate to cos x dx equals to dt, dt by dx, dx came this side. So look at this I will transformed into t to the power 3 and this much is dt, and the integration of t to the power 3 क्या होता है, t to the power 4 upon 4 plus c, and t क्या हमने लिया है, sin x, this is the answer of this integral, ठीक है। अभी इसी प्रॉब्लम में अगर मैंने ऐसा लिख दिया cos to the power 5x into sin x dx, ठीक है, cos to the power 5x into sin x dx, तो पावर जिस पे है आपने देखा, जिस पे पावर होता है जनरली पुटिंग में वही जाता है, सब्स्टिट्यूट उसको ही आप करते हो, तो यहाँ पे भी cos x को t पुट कर लो, सो डेरिवेटिव इज माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt, सो sin x dx इक्वल्स टू माइनस dt, तो ये इंटीग्रल क्या बन गई, दिस इज t टू द पावर 5 एंड दिस इज माइनस dt, माइनस यू टेक आउटसाइड, और इंटीग्रेशन ऑफ t टू पावर 5 क्या होगा, t टू पावर 6 बाई 6, t आपने क्या लिया है cos, सो ये आ गया होल 6 प्लस 6 माइनस 1 बाई 6 cos x टू द पावर 6 प्लस c, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है कि जो पुटिंग है जिस पे पावर है उसको मैंने t ले लिया, sin qx cos x, तो sin को t ले लिया, यहाँ पे मुझे cos टू पावर 5x sin x दिखा तो cos x को मैंने t ले लिया, एंड व्हेन डिफरेंशिएटेड
सो वी गॉट द इन टर्म्स ऑफ टी, और वो पावर फॉर्म में आ गया जहाँ पे वी आर एबल टू गेट द इंटीग्रेशन t⁶. इसी में एक सिचुएशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, विच इज sin क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx. ठीक है, sin क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स. तो यहाँ पे डियर अगर मैं sin x को पुट करूँ तो मेरे को सेपरेट cos x नहीं है, या cos x को पुट करूँ तो सेपरेट sin x, बट दोनों ही है. आपको ध्यान से देखना है. अगर मैं sin x को t पुट करता हूँ, ठीक है, इफ आई पुट sin x t, सो cos x dx, ये क्या मिलेगा अपने को dt. बट यहाँ cos क्यूब है तो मैं इस cos क्यूब को cos स्क्वायर x इंटू cos x लिख सकता हूँ. ठीक है, sin क्यूब x ऐसा दिखा. अब cos x dx तो एडजस्ट हो गया, विच इज dt. इस cos स्क्वायर x का क्या करें? इस cos स्क्वायर x को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, सो दैट फिर t आ जाएगा इधर, तो सारे कुछ t और dt में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हमारा इंटीग्रेशन डियर sin qx which is t क्यूब, फिर cos स्क्वायर x 1 माइनस t स्क्वायर. ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, sin x इज t 1 माइनस t स्क्वायर, और cos x dx क्या है हमारा dt. फाइन. अब मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखा दूँ. t क्यूब dt ये अलग हो गया, और माइनस t5 dt ये एक अलग हो गया. ठीक है, t क्यूब इंटू dt एंड माइनस t5 इंटू dt. इंटीग्रेट हो गया तो t4/4 t6/6 plus c. Now you will substitute the value of t. t I took sin x. समझ के लीजिए कैसे ब्रेक. यहाँ पे cos भी पुट किया तो भी चलता था. sin q को मैं sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स कर देता. सो दिस इज sin टू द पावर 4x/4 माइनस sin टू द पावर 6x/6 प्लस c. फाइन. You can take cos x also t in this sum. इस तरह के सेम पावर में. ठीक है डियर. So this way look at this. These are very basic questions which we are doing. So अपने को अच्छे से क्लियर होना चाहिए. आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं. करेक्ट. तो ये साइन कॉस के जो ऑड इवन पावर में कई बुक में ये मेथड लिखा होता है, तो नो नीड टू लर्न मेथड. इवन जब पावर हो तब क्या लेने का, ऑड पावर हो तो क्या लेने का, वो भूल जाएंगे आप कुछ दिनों में. आपको दिमाग में सेट करना है कि क्या पुट करें कि उसका डेरिवेटिव भी वहाँ मिल जाए, और अगर जो बचे हुए टर्म हैं क्या वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं हमारे टी में, दैट वी हैव टू टेक केयर. बात समझे? मतलब मैंने अगर साइन यहाँ पे टी लिया तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स भी मिल गया अपने को. करेक्ट. अब जो कॉस स्क्वायर एक्स टर्म सिंपल जो रह गया था वो कन्वर्ट हो गया साइन में भी, सो दैट आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ पूरी एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ टी. सो आई हैव रिटन देयर टी क्यू इंटू 1 minus t square into dt. Fine. And then we are able to integrate because ये आ गया x to the power n के फॉर्म में. Now we'll move to some more situation. Look at this. X plus 1 into 1 plus log x whole square upon, this is given x into dx. ठीक है. अब ये आपको सब्स्टिट्यूशन करना है. देखो सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा क्या, जिस पे पावर होता है वही सब्स्टिट्यूशन होता है. लॉग जहाँ दिखता है लॉग एक्स को हम टी पुट कर लेते हैं. तो ये धीरे धीरे आप में स्किल आनी चाहिए. ये धीरे धीरे आप स्किल से डेवलप करना है अपने आप में. जिसमें पावर है वही पुटिंग होगा. लॉग एक्स जहाँ होता है या साइन इनवर्स कॉस इनवर्स होता है उसको पुट करते हैं. तो दीज यू विल कम टू नो व्हेन यू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. लुक एट दिस. तो सीधी सी बात है, पावर हियर 1 प्लस लॉग एक्स पे होल स्क्वायर दिख रहा है. सो मैं 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर लूँगा. करेक्ट. पुट 1 प्लस लॉग एक्स टी. तो डिफरेंशिएशन ओवर हियर 1 इज 0, log x इज 1/x एंड t इज dt/dx. dx इधर ले आए आपने, dx अपॉन x इज dt. ठीक है. सो dx अपॉन x इट केम dt. नाउ दिस इज x plus 1 ऑल्सो लेफ्ट. ठीक है. ये 1 प्लस लॉग एक्स है, सॉरी
यहाँ पे ये x प्लस लॉग एक्स है, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, x प्लस, तो ये आ गया 1 प्लस 1/x, ठीक है। तो ये हो गया डियर x प्लस 1/x dx। चेक कीजिए, ये x प्लस लॉग एक्स था, x प्लस लॉग एक्स को t पुट किया, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, log x इज 1/x एंड t इज dt/dx, dx आपने इधर लिया, सो ये x प्लस 1 अपॉन x इंटू dx dt, ये आ गया। सो I इक्वल्स टू x plus 1 upon x dx is dt and x plus log x you have taken t, so t square dt, integration इसका क्या होगा dear, t3/3 plus c, what is your t, this is x plus log x cube by 3 plus c। ये लेवल है एनडीए का डियर, यही बेसिक लेवल दे जस्ट वांटेड टू नो। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, दे जस्ट वांटेड टू नो कि यू नो इंटीग्रेशन आप कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इंटीग्रेशन क्या है बेसिकली, हाँ, सब्स्टिट्यूट करके क्या आपका पर्पस है, सब्स्टिट्यूशन करके क्या मिलने वाला है, अंडरस्टूड। सो ये बेसिक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, 12वीं में भी यही पूरी लेवल आपको करने हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है डेयर। चलिए कुछ और भी सिचुएशन पे आते हैं। तो आज मंडे है और आज थोड़े वीडियोस ज़्यादा हैं, तो आज पूरे गो थ्रू कीजिए सभी वीडियोस को 1 by 1, ठीक है। होमवर्क में दूंगा नो डाउट, बट वीडियोस को अच्छी तरह से गो थ्रू कीजिए, बेसिक घबराना नहीं है। I इक्वल्स टू रूट tan x अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स dx। बहुत सारे फॉर्म हैं इंटीग्रेशन में, धीरे धीरे हर एक फॉर्म को अपने को कैटर करना है। सो इट विल गो अनदर 2-3 डेज में ये इंटीग्रेशन पूरा होगा, ठीक है। तो लुक एट दिस, अभी यहाँ पे रूट tan x अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स है। अब मैं साइन पुट करूंगा, कॉस नहीं है, कॉस पुट करूंगा, साइन नहीं दिख रहा है, tan x पुट करूंगा, सेक स्क्वायर नहीं दिख रहा है, बट इस पर पावर है तो ये तो श्योर है कि इसको ही पुट करना होगा, करेक्ट। तो tan x को मैं पुट करूंगा तो सेक स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो सेक स्क्वायर मैं बना सकता हूं कैसे, अगर मैं रूट tan x इंटू 1/cos स्क्वायर किया, ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर बन सकता है। सेम वे डिनोमिनेटर में भी मैंने cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, ये इनसाइड कर रहे हैं, बाहर और अंदर नहीं रख रहे हैं, ठीक है। इनसाइड यू कैन डू, ये कट जाएगा ना, तो दिस यू कैन डू, ऐसा नहीं कर सकते कि 1/cos स्क्वायर इधर और बाहर 1/, नो नेवर, यू कैन डू। सो 1/cos स्क्वायर और इसको भी cos स्क्वायर से, सो डेयर ये रूट tan x इंटू सेक स्क्वायर x हो गया ये, और नीचे क्या बन गया डेयर, एक cos कैंसिल, sin बाई cos tan x। नाउ क्या लग रहा है कि अपने को अब tan x को t पुट कर दें, जॉब इज डन, ठीक है। सो मैं tan x को t पुट किया, ये यहां अलाउ नहीं कर रहा है अपने को कि tan x t, सेक स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हमने ये बाहर से काम किया, 1/cos स्क्वायर और cos स्क्वायर से डिवाइड किया, cos स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। तो ऐसे सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के होते हैं जहां से बाहर से कुछ आउटसोर्स करना पड़े, प्रॉब्लम खुद से नहीं अपने को बताएगा कि मैं ऐसे सॉल्व हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो बाहर से आउटसोर्स किया है दैट इज इंपॉर्टेंट। सो tan x सेक स्क्वायर, tan x t पुट कर दिया डियर, तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, ये इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, दिस इज रूट t, सेक स्क्वायर x dx इज dt अपॉन t, ठीक है। तो ये कितना होगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हाफ dt। अब इसका इंटीग्रेशन माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, ये माइनस हाफ प्लस 1 हुआ, हाफ ऊपर गया तो 2, और ये हाफ हो गया 2 रूट t प्लस c, एंड t आपने क्या ले रखा है, tan x, 2 रूट tan x प्लस c। So the answer of this integration is 2 times of root tan x plus c, correct। So इस तरह के सम थोड़े अब धीरे धीरे आप में डेवलप होंगे, आप इस तरह के सम भी कर पाएंगे जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़े से आउटसोर्सिंग करना पड़ेगा। मुझे tan x का से फाइन, सो